जी अब कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। तो वी we discussed that certain rights have been given, certain special rights have been given to the minor partner, while some rights which are normally available to the general partners, they have been denied to them on the basis of give and take policy. So he is not personally liable for the act of the firm, and thus his personal property not to be used for the debt of the firm. Now, once ये चीज़ें clear होगी, now what would happen that once he gets major, or once he gets the knowledge about his share in the firm, whichever is later, चाहे वो पार्टनर बना है, मेजर बना है, चाहे वो उसके नॉलेज में आया है दैट ही हैज एज सच अ शेयर इन द फर्म, सो एट दैट Hello. पॉइंट, यस, नहीं. so at that particular time, rather within 6 months of that knowledge or within 6 months of attaining the majority, whichever is later, जो भी लेट है इन दोनों केसेस में, right from that period till 6 months from that point of time, any today if I get the knowledge being a minor that I have certain share in the property of the firm, or I am a share partner in a firm. So 6 months from today, that will make it May 10th May तक, इस पीरियड के दौरान मेरे पास सर्टेन ऑप्शंस हैं, या ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी the minor would have 6 months to decide. तो क्या डिसाइड करना है उसने? He has the option number one, either to continue with the firm or not to continue with the firm. लेकिन इन दोनों डिसीजंस में इनके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हैं. वाई कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट है वो हम देखते हैं. नंबर वन, द माइनर हैज द ऑप्शन to become partner and entitled to share to which he was entitled as a minor. जो पहले शेयर था एज ए जनरल रूल, अगर कॉन्टेक्ट डिफरेंट है वो सेपरेट बात हो गई. एज ए जनरल रूल ऑफ पार्टनरशिप लॉ, once he becomes partner, he has the option to decide within 6 months after obtaining majority or after obtaining the knowledge regarding his share in the firm, he has to decide to become partner as a regular partner. So he will be entitled to share the profit, and as well as he is entitled to share the share to which he was entitled as a minor. जो एज ए माइनर वो पार्टनरशिप के एडवांटेजेस का एंटाइटल था, उसको वो एंटाइटल कंटिन्यू करेगा. हैज़ अ ऑप्शन नॉट टू बिकम पार्टनर, ये भी इसके पास ऑप्शन है दैट on obtaining majority he decides के for whatever reasons, maybe he's not that happy, maybe he wants to shift his business or to invest his investment into any other business, जो भी उसके माइंड में आता है. मे बी ही वॉज नाउ ही इज अ क्वालिफाइड IT engineer, so previously his investment was in the trading firm. Now he intends to start up his own business, so he can take back that investment and invest it into his own personal sole property or sole business. That could be IT company or something like that. But 6 months, what you have to remember, 6 months after obtaining the knowledge or after becoming major. So once he chooses to become a partner, what would happen? यहाँ पे अब थोड़ा सा difference, you will see the difference. He becomes full partner as soon as he decides to become a partner. He becomes a full partner. But the question is from you people, would he be a partner? Would he become full partner on choosing to be a partner on that day when he has chosen to be a partner, or he would become full partner right from the date when he was a minor, back in times? When would his liability as a partner will will commence or start? Sir, when he Would chooses to become full partner.
means today and not Yeah. from the यस past. सर, Okay. Any फुल other comment? पार्टनर, क्योंकि सर पहले तो माइनर था। सर माइनर के केस में तो जो भी था वो पर्सनली लायबल नहीं था, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड थी। तो सर जब मेजर होगा, जब फुल पार्टनर होगा, क्योंकि पहले वो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया गया था। यहाँ पे सर अगर ये फुल पार्टनर होगा तो ऑब्वियसली इसको जो भी है लॉसेस भी शेयर करने पड़ेंगे, प्रॉफिट्स भी शेयर करना पड़ेगा। तो इक्वली लायबल होगा हर एक चीज के लिए, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। Okay. Very incorrect answer. So let's have a surprise. Surprise ये है, would he be personally liable for the previous debt? The surprise is that rights and liability continue up from joining date as well as personally liable for the previous acts. Is not only liable, and once he decides to be a partner from today up to he has become major or so he is a full partner for all practical purposes. Liability भी और उसकी जो rights हैं वो full हो गए जैसे एक full partner के होते हैं. But in addition to that, the surprise is that he will also be liable, personally liable for the previous acts. It means he has become full partner. Today he has decided to continue to be a partner, to be a full partner after attaining majority. And after deciding, after this decision, his liability as a full partner would start from the past, right from the time when he was as such admitted as a partner. तो सर Now इट्स this is the surprise. रेट्रोस्पेक्टिव। तो सर ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा ना सर, जी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जी सर तो लॉजिक इस अपनी बात, कर रही रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा ना सर ये। जी जी हाँ ओके लेकिन सर। सर लॉजिक ये जो आपने पॉइंट बताया ना कि वो प्रीवियस एक्ट्स के लिए लायबल होगा, तो ये नहीं कि फॉर एग्जांपल अगर वो आज ज्वाइन कर रहा है एज अ फुल पार्टनर, तो प्रीवियस जो उसकी पर्सनल एक्ट्स के लिए वो जो अगर कोई डेब्ट आ रहा है उसके लिए लायबल होगा या सारों चीज़ों के लिए लायबल होगा जो उसके यानी कि उसके ऊपर जो थी प्रीवियसली। इसको जरा क्लियर करें. आई एम नॉट सर गेटिंग आपने सर कहा दैट. है ना कि मतलब आज, जैसे आपने कहा था कि जब से वो माइनर बना है ना, माइनर इज अ पार्टनर, तो वहां से इसके जो भी डेब्ट्स हैं, जो भी लॉसेस हैं, उनके पार्टनर ने फेस किए हैं जो मेजर पार्टनर थे। तो सर उस टाइम पीरियड से, जब से वो माइनर बना था या अभी फुल जो है पार्टनर बन गया है, उस पीरियड से लेकर माइनर से मेजर तक उसके जो है पार्टनर्स ने जो भी डेब्ट्स या लॉसेस फेस किए हैं, उस सब के लिए ये लायबल होगा। यस और सर ये क्यों, मतलब सर इसका गिव एंड टेक क्या है अगर वो इनके लिए लायबल है तो? यहाँ अब सिंपल लॉजिक जो मेरे माइंड में आई जो मेरे माइंड में आई ये है दैट वंस ही ये माइक कर दे माइक म्यूट कर यस जो मुझे लॉजिक नजर आ रही है ये आ रही है जीरो 33 कौन है टाइम मास्टर भाई कौन है मास्टर गाइस कौन 33 कौन है रशीद यस सर। ये 33 कौन है सर मोहम्मद इब्राहिम है। तो उसे पर्सनली मैसेज करें कि अपने
जो भी बिजनेसेस कर रहे हैं उसको साइड पे रखें और क्लास में श्योर सर, मैं अटेंशन। कर देता हूँ। जी सर। अच्छा जी, सो इस प्रीवियस लाइबल होने की जो मेरे माइंड में लॉजिक आ रही है वो ये है that when he got majority, he was now sensible person, and he look at the previous treatment of the firm, and that looked quite valid to him, quite reasonable to him. It means that previously he was not being denied the right of the profit. He was looking after all the accounts of the firm, and he was given a very right share to which he was entitled. So everything in the past went very well, very good. That is why, and that was the reason when he became major and reasonable, he thought that it will be good to continue with that firm. It means past में सब कुछ सही हुआ है. There was no problem. And now once it was so good that now he had opted to continue with that partnership, इसलिए previous act के लिए भी वो liable है. कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई उसको अननेसेसरीली प्रेजुडिस नहीं किया गया, डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गई. जहां तक उसे एज ए राइट पार्टनर ही लिया गया, एज ए फुल पार्टनर लिया गया, जो उसका राइट था वो उसे दे दिया गया था या दिया जा रहा था. उसके एसेट्स को कोई डैमेज नहीं हुआ, उसका राइट टू सू डिनाई किया गया था, लेकिन उसको राइट टू सू करने का मौका फराहम नहीं किया गया था. दैट इज वाई ही कंटिन्यूड फॉर द लास्ट 4, 5, 10 years. Had there been any problem, he would have opted to go for the suit. He would have severed with the firm and the litigation would have started. But he was not given any opportunity, he was not given any chance by क्या कहें हम, I'm not getting the proper word. I mean, he was given the full comfort, full relief, full benefits in the firm, that he didn't opt to go for the litigation. Everything was fine. Although the right to sue was being denied, but उसको ऐसा मौका नहीं मिला है, उसको ऐसा चांस नहीं मिला है. क्या, स्टिल आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, क्या कहते हैं उसको, वो इस नहज तक नहीं पहुंचा है कभी भी सिचुएशन दैट ही कुड सू. इट मीन्स द थिंग्स वेंट वेरी वेल. It went that well that today he decides to continue with that firm. That is why he has been held liable for the previous acts as well. Otherwise, if he's not happy right today, he don't want to be personally liable for the previous act. He is not satisfied right today. He will decide not to be a partner. उसकी previous personal liability नहीं है. He does not have previous personal liability if he decides today not to continue with the firm. But he feels that he's getting benefit, he's getting profit, and he wants to be continue with that firm, so previously वो liable हो गए. Does this make any sense? सर इस पॉइंट की समझ नहीं आ रही कि जो आप कह रहे हो कि जो प्रीवियस एक्ट्स है उसके लिए लायबल होगा. प्रीवियस कौन से एक्ट्स? I mean जो भी previous contracts हुए हैं, previous जो भी transactions firm कर रही थी, अब उन transactions की वजह से today I decided, let's suppose the firm was transportation की एक business की firm थी, तो obviously past में उन्होंने fueling के contracts किए होंगे किसी PSO के पंप से,
रिपेयर के किसी और रिपेयरिंग के लिए किसी और फर्म से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे। फॉर एग्जांपल उनको लीगल हायरिंग के लिए, लीगल लिटिगेशन के लिए उस फर्म ने किसी और लॉ फर्म को इंटरेक्ट किया हुआ था। So now after becoming major, I would be liable for all these previous transactions. अब उन previous transactions से if I feel uncomfortable, so I must show my reservation so much so that I may decide not to continue with the firm. मुझे ये जो इन्होंने लीगल फर्म हायर की थी ये ठीक नहीं थी, इसमें प्रॉब्लम था, whatever the case may be. You are not satisfied with that one transaction, so either you can get it changed, उस फॉर्म को चेंज करवा के आप कोई और फॉर्म ले आए, उसका ट्रांजैक्शंस करा लें, एंड नाउ यू डिसाइड्स टू बिकम द फुल पार्टनर। बट इफ यू आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड कि प्रीवियस ट्रांजैक्शन जो आपने लीगल फर्म की सर्विसेज लिए थे, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, स्टॉप, आई डोंट वांट टू बी अ पार्टनर एनी मोर, क्योंकि आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं है प्रीवियस से, आप प्रीवियसली लायबल भी नहीं होना चाहते हैं, सेटिस्फैक्शन भी नहीं है, तो यू कैन स्टॉप टू बी अ पार्टनर। लेकिन अगर आप यू आर सेटिस्फाइड, सो देन यू विल बी liable, you will be answerable, you will be taken as a partner for all the previous transactions which have been taken by the firm with any other legal firm, with any other petrol providing PSOs or अटक रिफाइनरी whatever जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हमें फर्म आपने पेट्रोलिंग आपने हमें देनी है, रिपेयरिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके लिए आप लायबल होंगे। डू यू गेट दिस पॉइंट? ये सर, तो मतलब कि प्रीवियसली जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुए होंगे उनमें जो लॉस या वो जो आएगा उनके लिए आप वो रिस्पॉन्सिबल जो भी आएगा, ऑब्वियसली बेनिफिट आ रहा है, जो लॉस आ रहा है, जो भी आ रहा है, ही विल बी पर्सनली नाउ लायबल राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन ही बिकेम पार्टनर। अगर ऑब्जेक्शन है, डिसाइड कर लो, आई डोंट वांट टू बी कंटिन्यू विद द फर्म, ऑप्शन दिया गया है, कोई फोर्स नहीं दिया गया। लेकिन नाउ ही इज अ मेजर, ही कैन टेक वेरी रीजनेबल स्टेप्स, डू व्हाटएवर यू लाइक। अगर लिमिटेड आप लायबिलिटी खत्म हो इफ जाएगी यू सर। हाँ, इफ यू चूज, देखिए नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी ऑन बिकमिंग पार्टनर तो वो फुल हो गया, आज से तो उसकी लाइबिलिटी फुल हो गई, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस एक्ट्स। यस। तो प्रीवियस में अगर आप चाहते हैं टू कर्टेल योर प्रीवियस पास्ट लाइबिलिटी, तो आज डिसाइड कर लो, आज तक तो आपकी लाइबिलिटी पर्सनली है, लेकिन आज अगर आपने ये डिसाइड किया कि आप पार्टनर हैं तो पर्सनल नहीं रहेगी, यानी पर्सनल भी आप लायबल रहेंगे। तो अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो प्रीवियस पर्सनल रहने दें, आज से अपना ताल्लुक ख़त्म कर दें। तो प्रीवियस के लिए आप लायबल नहीं है, फ्यूचर के लिए आप फर्म का पार्ट नहीं है, वेल एंड बेस्ट। अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि नहीं कंटिन्यू करूँगा, तो प्रीवियस भी लायबल होंगे। अब प्रीवियस लायबल होने के लिए मैंने आपको कुछ लॉजिक्स दे दिए कि आप इतने कंफर्टेबल जा रहे थे उस फर्म में, आप इतना कंफर्टेबल जा रहे हैं, इतना बेनिफिट आप गेन कर रहे थे कि आपको कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई आपको कंप्लेंट्स नहीं है अगेंस्ट दैट फर्म, एंड यू स्टिल डिसाइड टू कंटिन्यू विद द फर्म। इट मीन्स पास्ट में यू वर ट्रीटेड वेरी वेल, यू आर बीइंग गिवन द फुल बेनिफिट। अगर फुल बेनिफिट मिले हैं तो इसलिए आपको प्रीवियस एक्ट्स के लिए फुल पार्टनर कंसीडर करते हुए आपको राइट दिया जा रहा है, आपसे आपकी लाइबिलिटी फुल की जा रही है। अदरवाइज एज आई टोल्ड यू, हैड देयर बीन, आपका वो जो राइट्स था कि आप सू नहीं कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए, उसका मौका नहीं आया है, वो सिर्फ नॉर्म के लिए था, मौका नहीं आया है, कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं हुई है। सो दैट इज वाई दे थॉट कि उसको प्रीवियसली एक्ट से लायबल कंसीडर कर दिया जाए। नंबर 2 ये है कि जब आज उसने डिसाइड कर लिया है तो प्रीवियसली जो ट्रांजैक्शन फर्म ने किए थे, इट मीन्स दे वर द राइट ट्रांजैक्शंस, दे वर द राइट कॉन्ट्रैक्ट्स, he has to admit those previous contracts if he is comfortable। नहीं है तो चला जाए। Is this clear?
Yes, sir. Excuse me, sir. Yes. Sir, you told us that in case of an incoming partner or new partner, he won't be held liable for any of the previous acts of the firm, right? तो जब माइनर मेजर होता है तो भी आई गेस एक न्यू एग्रीमेंट साइन करता है या कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। उससे पहले तो ही वाजंट मैच्योर इनफ टू नो या लीगल डॉक्यूमेंट तो पढ़ ही नहीं सकता था, ही वाज अ माइनर, उसको समझ भी ना आता। तो ये तो जैसे सच अ बिग डिसएडवांटेज उसके लिए। नहीं, number 8, his guardian was always there. I mean, at least through someone he was admitted in the firm, into the firm. It could be the court, it could be any natural guardian, parents भी हो सकते हैं, grandparents भी हो सकते हैं. At least those grandparents have the right to access to see the affairs of the firm. ठीक हो गया? Obviously वो इसलिए ही करेंगे ना. In most of the situation दोनों के बेनिफिट के लिए किया गया है. ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी अगर वो देखता है कि फर्म मुझे एडमिशन ही मेरा जो है वो मेला फाइडी था, मैं भी उसके जो नेचुरल गार्डियन या लीगल गार्डियंस थे उनकी भी मेला फाइडी थी, फिर वो अगेन लिटिगेशन, सिविल लिटिगेशन में जाया जा सकता है. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो नेचुरल गार्डियन है वो तो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, आप उनसे ये इतना मेलाफाइड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं. नंबर 2, अगर अदर देन लीगल गार्डियन अगर कोर्ट से कोई गार्डियन अपॉइंट होता है तो ऑब्वियसली जब कोर्ट डिसीजन ले रही होती है तो वो तमाम फैक्टर्स को कंसीडर करके किसी को लीगल गार्डियन अपॉइंट करती है. अब वो लीगल गार्डियन जो नेचुरली कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड देख के, माइनर देख के एक डिसीजन लिया होता है, तमाम चीज़ों को कंसीडर करके वो एक डिसीजन लेती है दैट ही इज़ ए लीगल गार्डियन, तो उसमें बोनाफाइड एलिमेंट डोमिनेट कर रहा होता है कि दैट जेंटलमैन वुड डू इन द बेनिफिट ऑफ द माइनर. अब उस माइनर, वो जो लीगल गार्डियन है उसने अगर कोई स्टेप ले लिया और माइनर को कहीं पे एडमिट कर लिया तो इट विल बी प्रिज्यूम दैट द थिंग्स आर इन फेवर ऑफ द माइनर. सो जब तक वो माइनर मेजर नहीं रहा, यहाँ तक द गार्डियन वुड बी टेकिंग केयर और गेटिंग the right information from the firm, inspection, etc. Everything should have been going smooth. If any time he feels, the guardian feels that the things are not doing good, the right profit are being denied to that minor, he can file the suit and severing from the firm. Full option. फॉर्म से हट जाओ, सू करो, अपना बेनिफिट क्लेम करो. But it didn't happen. The firm went very well. Profit or gain to the minor until the time when he becomes major. So it means previously everything went very well. Minor के behalf पे उसका legal guardian काम कर रहा है. So decision should be thought to be reasonable. So on getting majority, now the decision is आपने क्या करना है. वो मैंने आपको just explain किया है. Did you get that? Or still any confusion? Yes, sir. So basically, he won't be considered as a new partner. But my नहीं. He will continue to be a partner. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सर एक क्वेश्चन था कि अगर कोई न्यू पार्टनर जिस तरह प्रीवियस एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स हुए उनमें से स्पेसिफाई भी कर सकता है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में मैं लायबल हूँगा और कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेना चाहता. No, कोई issues नहीं है. No issues at all. Unless again, if the rest of the partners उस पे agree हो जाए. Obviously, rest of the partners उसको certain contracts की liability से क्यों immune करेंगे, exempt करेंगे, वो factual situation पे देख के. अगर वो ऐसा करेंगे तो उससे obviously in return कुछ ले दे होगी. हो सकता है. It always depends upon the सर जैसे कि एक हमने वो भी प्रिंसिपल भी पढ़ा था सर, उस yes.
नेसेसरी नहीं होता। अगर सर ये जो माइनर पार्टनर है, Repeat your सर question, ये जो Rashid. माइनर, I didn't hear it. यस सर। सर जैसे कि हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, आपने केस दिया था, उसमें रघुनंदा का केस था सर, जिसमें के दिया गया था प्रिंसिपल के शेयरिंग ऑफ लॉस इज नॉट नेसेसरी फॉर अ पार्टनरशिप। तो सर जैसे ये माइनर है, अगर इसने ज्वाइन ही जो है प्रॉफिट के लिए किया हो, उसके एग्रीमेंट के हिसाब से सिर्फ उसने प्रॉफिट शेयर करने हो, तो सर ऑब्वियसली वो जो डेब्ट्स हैं या जो लॉसेस हैं, तो उसके लिए तो वो लायबल नहीं होगा किसी भी हालत में। नहीं, पर्सनली लायबल नहीं होगा, पर्सनली, लेकिन उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लायबल होगी। ड्यूरिंग माइनॉरिटी उसके पर्सनल एसेट्स लायबल नहीं है, लेकिन उसके वो एसेट्स जो कि उसने फर्म में इन्वेस्ट कर दिए हैं, फॉर एग्जांपल उसने कैश की हम एग्जांपल ले लें, उसने अगर 1 मिलियन इन्वेस्ट किया था तो वो 1 मिलियन तक वो लायबल होगा, लेकिन वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। पर्सनली लायबल का ये मतलब होता है, इफ द 1 मिलियन इज नॉट सफिशिएंट टू पे बैक द डेट्स टू द थर्ड पार्टी, तो माइनर की पर्सनल कार, माइनर की दूसरी प्रॉपर्टी कुड बी यूटिलाइज्ड टू पे बैक द डेट। दिस इज पर्सनल लायबिलिटी। दिस ठीक हो गया इज सर, मतलब यहाँ पे इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होगी, जो भी यस अपने एसेट्स तक वो रहेगा, रेस्ट्रिक्ट यस रहेगा, लिमिटेड रहेगा। यस यस, हो गया। वही उसको बेनिफिट दिया गया है लिमिटेड लायबिलिटी का, बट राइट टू सू हैज बीन टेकन अवे, डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक हो गया। हाँ, अगर वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, so get out of the firm, leave the firm, go file the suit, अपना जो भी grievances हैं जाके कोर्ट से उसको get itself redressed. He has a full option. During the continuance, the benefit is limited liability. The disadvantage, no filing of the suit. If you agree, please continue with the firm. Not agree, please leave the firm. Mutual agreement, give and take. Everything depend upon between the partners. Fine? फाइन सर, क्लियर सर। Is this making sense? यस सर। या किसी को कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है माइंड में? Excuse me, sir. Yes. So once he becomes major or sub kuch, then he can sue the partners, right, without dissolving the firm. Yes. वो now he has become full partner. वो हम देखेंगे later on. Remember, again I told you, if you lose the trust, तो फॉर्म फिर कंटिन्यू नहीं रहती है, लिटिगेशन वो हम कहीं आपको मैं डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में हम इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एज ए फुल पार्टनर यस, देन ही कैन फाइल द सूट. Once you file the suit, so you are no more, you are not supposed to continue with that firm. Confidence खत्म हो गया, ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है तो इसलिए you went to the court. So once no trust, no firm. Unless unusual situation में मे बी उसके इकोनॉमिक रिपरकशन बहुत सवेयर हो, उसको अवॉइड करने के लिए मे बी आप रिकंटिन्यू करें फॉर्म को, लेकिन नॉर्मली वो ट्रस्ट लेवल जो है वो मैटर कर रहा होता है, वो फिर उसके पे नई एग्रीमेंट कर सकते हैं दैट मे बी आई विल हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स, फाइनेंस को मैं खुद ऑब्जर्व करूंगा, या फिलहाल ने फाइनेंशियल एक्सपर्ट को, ऑडिट ऑफिसर को आपने अपॉइंट करना है फॉर माय प्रोफेशन, इस तरह वो रिकंटिन्यू कर सकते हैं। Okay, sir. एक्सक्यूज मी सर, यस, अगर न्यूली एंटर्ड पार्टनर जो है, लाइक जो माइनर था अब वो फुल पार्टनर हो गया, और अगर वो ये कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो फ्रेश होता है दोबारा से, अगर वो करे और उसमें ही थिंक्स के, अगर वो इस मतलब के कंडीशन रखता है कि प्रीवियस एक्ट्स के लिए वो लायबल नहीं होना चाहता, तो कैन इट बी वैलिड? आई थिंक यस। पहली बात तो ये है, अभी ये नेक्स्ट स्लाइड आप देखें ना कि हाउ ही, ज़रूरी नहीं है कि उसने रिटन एग्रीमेंट करना है टू कंटिन्यू एज ए पार्टनर. फॉर एग्जाम्पल, he became major
and he got the knowledge that he is a minor, that he has a partner, 6 months गुजर गए हैं, he is full liable for section would be automatically applicable. कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, पहली बात तो यह है कि ये सेक्शन एप्लीकेबल हो गया, इट मीन्स प्रीवियस एक्ट के लिए लाइबल हो गया है, क्योंकि सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा. इसको अवॉइड करने के लिए नाउ अगेन फुल पार्टनर वो हो गया. इफ ही हैज नॉट चोजन टू सिवेयर विद द फर्म, फुल पार्टनर हो गया बिकॉज ही हैड द नॉलेज एंड ही हैड बिकम मेजर. अगर वो अपने आप को सिवियर करना चाहता है, स्टॉप, ही वांट्स टू स्टॉप दैट पार्टनरशिप, तो उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं क्या होगा. अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया, ही इज अ पार्टनर. सो वंस ही इज अ फुल पार्टनर, अब वो म्यूचुअली एग्रीमेंट कुछ भी कर सकते हैं, अपनी प्रीवियस लाइबिलिटी को कर सकते हैं. नो वरीज, इफ रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स आर ओके, सो नो प्रॉब्लम. लेकिन लॉजिक आप ये देखें दैट he was feeling that comfort that he opted to continue with the firm. It means previous कोई प्रॉब्लम तो नहीं था ना, प्रॉब्लम नहीं था इसलिए इसने कंटिन्यू किया. अगर उसे प्रॉब्लम होता कि प्रीवियस एक्ट्स की वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकता है, तो ही वुड ऑप्ट नॉट टू कंटिन्यू. जरूरी तो नहीं है, जो प्रॉफिट उसे मिलने थे वो मिल रहे थे, उसने उसको एंजॉय कर लिया. थोड़ा उसको डाउट था, उसकी वजह से उसने फर्म छोड़ दी, उसको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, सू कर दो, कोर्ट से अपना रेड्रेस कर दो. सो वो जो कंफर्ट लेवल है उसका होना, ट्रस्ट का होना, दैट कैन कंटिन्यू द फर्म बट नॉट अदरवाइज. गॉट इट? यस सर. अच्छा, सेम शेयर्स टू प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट. अगर कोई एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्री नहीं है, जैसे वन ऑफ योर फ्रेंड वाज सेइंग, तो जो प्रीवियस प्रॉपर्टी के उसके राइट्स थे और प्रीवियस उसके राइट टू शेयर थे वो कंटिन्यू करेंगे. सो ये हो गया नंबर वन सिनेरियो, ही हैज चोजन टू बिकम अ पार्टनर. सेकंड सिनेरियो, he has chosen not to be a partner. So what would happen? Naturally, rights and liability as a minor continue until the public notice of his decision. He had the knowledge that he is a major, and he has the knowledge that he has become partner. He has the knowledge that he is as such partner in the firm. So his liability now would start to be as a full partner, unless after getting majority he gives a public notice. Section 72 के तहत जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए एडवर्टीजमेंट दे दी, पब्लिक डिस्क्लेमर दे दिया दैट आई एम नो मोर अ पार्टनर, देन ही सीजेस टू बी अ पार्टनर. अदरवाइज उसकी लाइबिलिटी एज ए माइनर पार्टनर कंटिन्यू रहती है. राइट्स एंड लाइबिलिटी एज ए माइनर पार्टनर, एज ए फुल पार्टनर नहीं, वो कंटिन्यू रहती है बिकॉज एज ए माइनर राइट, माइनर पार्टनर ही उसकी लाइबिलिटी भी वैसे ही है और उसके राइट भी वैसे हैं. ही कांट सू, वो भी वैसे रहेगा. आफ्टर गेटिंग मेजॉरिटी इफ ही डिसाइड्स टू फाइल द सूट, तो फिर बस एवरीथिंग विल बी एवरीथिंग गेट्स ओपन. ही हैज बिकम मेजर, प्रॉब्लम्स आर देयर, कोर्ट अब डिसाइड करेगी. एंड ऑब्वियसली व्हेन ही इज गोइंग टू द लिटिगेशन, at that time he is supposed to be minor, क्योंकि उसके previous rights minor के थे. So once he filed the suits, so he has decided not to be a partner. He has to get away from the firm, filing the suit, get his rights redressed, या जो भी उसके जो grievances हैं, get those grievances redressed, and this is how it continues. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं आज तो मैं नहीं आ जी. आसिफ साहब होपफुली आने चाहिए थे, मैं अभी तो क्लास में था, उन्हें इन्फॉर्म नहीं कर सका. तो खैरियत? जी हाँ, होपफुली उनको एक्चुअली लास्ट
मैंने कहा तो था लास्ट वीक के ट्यूसडे वेडनेसडे आप आ जाया करें। So he has chosen not to be a partner, or at the time of public notice, once he gives that public notice, he has become major and he has given the public notice. Now his shares are not liable for the act of the firm, and obviously he is entitled to sue partner for his accounts and profit. उसने डिसाइड कर लिया है कि आई वॉन्ट कंटिन्यू टू बी अ पार्टनर। तो वैसे भी आज के दिन से वो वैसे भी सिवियर हो गया है, होना चाह रहा है आफ्टर गेटिंग मेजॉरिटी। और previously he had those rights to get himself separated for the firm and file the suit. आज भी once he gives that public notice to sever himself from the firm, so he has the right to file the partners to sue the partner for all the accounts and the profit in the firm. ठीक हो गया? Is this clear? सर ये करने को सिविल जिस तरह उनकी जो की लायबिलिटी उसी तरह रेट्रोस्पेक्टिव होगा। समझ नहीं आई आपकी क्वेश्चन की सर जो डिस्टॉर्शन। माइनर आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी सर जो उनके लायबिलिटी क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव होती है, तो सर उसका वो सू कर सकता है अपने पार्टनर्स के पिछले एक्ट्स को रेट्रोस्पेक्टिव मतलब। देखिए, at that particular point when he becomes major and he gets the right, that he gets the knowledge that he has shares as such. Now at that point of time, दो options हैं. Option number one, to become a partner and previously liable. Option number two, not to become a partner, so no liability, no previous liability, nothing to do with the previous acts. उसकी previous liability as a minor ही रहेगी, पर्सनली लाइबल प्रीवियस के लिए नहीं होगा अनलेस कि पब्लिक नोटिस इन्वॉल्व है। अगर अगर उसने पब्लिक नोटिस दे दिया है दैट आफ्टर ऑब्टेनिंग अ मेजॉरिटी आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दैट फर्म, तो प्रीवियस एक्ट्स के लिए वो प्रीवियसली पर्सनल लाइबल नहीं है। पर्सनल लाइबल तब होगा जब ही हैज चोजन टू बी अ पार्टनर टू कंटिन्यू टू बी अ पार्टनर। इफ ही हैज चोजन नॉट टू बी अ पार्टनर, तो उसकी लाइबिलिटी आज के दिन प्रीवियस एक्ट्स के लिए पर्सनल नहीं है बल्कि प्रॉपर्टी की हद तक है, पर्सनल नहीं होगी। तो ऑब्वियस एंड इन एडिशन टू दैट, अगर उस पर्सनल प्रीवियस एक्ट्स के लिए भी उसको कोई प्रॉब्लम है
तो ही हैज़ अ राइट टू फाइल द सूट कि प्रीवियसली इन्होंने ये और ये प्रॉब्लम किया था और इन्होंने मुझे प्रॉफिट नहीं दिया था, इन्होंने मुझे फेयर शेयर नहीं दिया था, तो उसके लिए वो फाइल सूट कर सकते हैं बिकॉज ही इज नो मोर अ पार्टनर, नाउ ही हैज़ बिकम अ थर्ड पार्टी और एज ए थर्ड पार्टी ही कैन फाइल द सूट, सिविल लिटिगेशन में जाके अपना ग्रीवेंसेस रिड्रेस करा सकते हैं. इज दिस क्लियर? यस सर क्लियर. एक्सक्यूज मी सर. यस प्लीज. सर इन केस पार्टनर को पता ही नहीं है कि मतलब कि उसे कहीं से बेनिफिट्स आ रहे हैं या किसी फर्म के अंदर वो है और वो उस दौरान जो है मेजॉरिटी अटेन कर लेता है एंड ही हैज़ नॉट गिवन एनी पब्लिक नोटिस इवन. तो एज यू सेड कि अगर वो पार्टनर बनते हैं ज़रूरी नहीं है उसकी वो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट करे. अगर वो कुछ नहीं करता इट मीन्स इज गोइंग टू कंटिन्यू. तो व्हाट विल बी इन दिस केस अगर वो पार्टनर नहीं रहना चाहता बट उसको पता नहीं था और उसने पब्लिक नोटिस भी नहीं दिया, तो क्या उसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगी या फिर इट विल बी अनलिमिटेड? The two conditions that we talked about before, those were that the point of time when he has to decide is it starts from वो जो 6 months है when he has to take decision either to continue or not to continue. So today if I had to decide, today if I become major, number one, or the minor gets the knowledge that he is a shareholder as such, whichever is later, इनमें जो भी लेटर है दैट विल बी काउंटेड. सो मैं मेजर बन गया हूं बट मेरे नॉलेज में नहीं है तो आई वुड नॉट बी एज सच लायबल. सो विच एवर लेटर जो कंडीशन होगी एट दैट टाइम आई हैव टू डिसाइड. उसके बाद मेरे पास 6 मंथ्स है और मैंने उसमें डिसाइड करने हैं. 1 मिनट प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हेडिंग्स देखिए आपने अपनी, कहाँ पे 14 लिखा हुआ है मैनुअल में? कहाँ लिखा हुआ है मैनुअल में? हेडिंग्स का कहाँ लिखा हुआ है कि 14 है? चैप्टराइजेशन में हाउ डिड यू कम टू नो कि वहाँ 14 है? थिंक या रिटन? There is nothing in the manual which says that font should be 14. It means the font throughout the thesis it will be 12. The main heading will be chapters heading and chapter title will be in capital words. The rest they will be in bold only, but in small. There is nothing anything else has been written in the manual. So follow that manual. Do it today, submit it, and then you have to submit the hard binding as well. It was supposed to be submitted yesterday. Monday को आपने submit करा. बस कल तक कर लें और मुझे फिर उसको सेंड करें. अल्लाह. Yes, Aves. You raised your hand again. नहीं सर मैंने डाउन कर दिया. वो क्वेश्चन वही था. ठीक है. I think yes. Now मैं किस पॉइंट पे था? Yes, I said whichever is later. What the later point, the later situation, and 6 months from that later situation, either from getting majority or from the knowledge. इससे 6 महीने के बाद that gentleman has to decide, that minor partner has to decide either to continue or to not continue. Continue के लिए भी consequences हैं, not to continue के लिए भी consequences हैं. Now, obviously,
obviously this is a question of fact whether he had knowledge or not. ये जो question है, this is a question of fact, it is has to be determined by the court. ये कोर्ट में प्ली लिया जाएगा, डिनाई किया जाएगा, और कोर्ट अगर ये डिसाइड करती है, अगर ऐसा कोई लाइबिलिटी का सिचुएशन अराइज होता है, तो और वो ये प्ली लेता है दैट आई हैड नो नॉलेज अबाउट दैट शेयर, तो ही हैज टू प्रूव दैट. तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स जो हैं वो फैक्चुअल बेसिस पे कोर्ट ने डिसाइड करने होंगे. गॉट इट? यस सर. ठीक हो गया. नाउ गेटिंग टू द सेम शेयर ऑफ द प्रॉब्लम. अच्छा, ये हो गया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट सबसेक्शन. इन फैक्ट दैट सेक्शन सेज कि ये जो हमने सबसेक्शन 7 और 8 पढ़े हैं, दैट इज अबाउट चूजिंग टू बी अ पार्टनर और नॉट टू बी अ पार्टनर, दे आर नॉट टू बी एप्लीकेबल ऑन सेक्शन 28. सेक्शन 28 जो है दैट वाज टॉकिंग अबाउट द होल्डिंग ऑफ. मेजॉरिटी होते हुए, अगर मेजर होते हुए उसने अपने आप को स्टिल होल्ड आउट किया है टू बी अ पार्टनर, और वो जो सेक्शन 28 और उसकी बेसिस पे समवन हैज गिवन क्रेडिट, तो उस पे ये सेक्शन सब सेक्शन 7 और 8 एप्लीकेबल नहीं होंगे कि उसने नोटिस दिए हैं या नहीं दिए, पब्लिक नोटिस, बिकॉज ही हैज शोड हिमसेल्फ टू बी अ पार्टनर, और उसकी बेसिस पे समवन हैज गिवन क्रेडिट, जो भी सिचुएशन हो. सो उस केस में उसकी उस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा. सेक्शन सब सेक्शन 2 एंड सर उस केस में तो अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने किया कि अगर उसका कोई गार्डियन है, वो प्रिटेंड कर रहा था कि मेरा जो माइनर बेटा है वो पार्टनर है, और फिर जब वो मेजर हुआ तो उसने कहा कि, यानी कि वो था नहीं, जैसे 28 की आपने बात की है, वो भी यही प्रिटेंड करने लगा कि मैं तो पार्टनर हूँ इस फॉर्म का, तो उस पे ये अप्लाई नहीं होगा फिर. गार्डियन ने प्रिटेंड किया दैट ही इज. सर होल्डिंग में तो हमने यही पढ़ा था ना कि अगर यानी कि अब यहाँ पे तो माइनर की बात हो गई, जैसे कि पहले वो माइनर था तो वो तो खुद तो इसके लायक नहीं था कि वो किसी को बताए कि मैं पार्टनर हूँ, या उसकी गार्डियन ही वो करेंगे ना. देखिए, यू आर अ पार्टनर. होल्डिंग आउट में ये था दैट यू आर नॉट पार्टनर एंड यू शो अप दैट यू आर अ पार्टनर. यहाँ पे तो वो पार्टनर है. Maybe on choosing, once he obtains majority and he has decided not to continue with the firm, or he has given the public notice even that he is no more the partner of the firm, but he has shown up to be a partner somewhere, that I am still a partner, उसकी बेसिस पे कोई क्रेडिट का ट्रांजैक्शन हो गया, उस पे फिर ये पब्लिक नोटिस वाली सिचुएशन एप्लीकेबल नहीं होगी. ठीक है सर. अच्छा जी. नाउ दैट वाज एन इंटरेस्टिंग केस लॉ, जो कि आपकी नेक्स्ट क्लास की असाइनमेंट भी है. 1988 पीटीडी ट्रिब्यूनल 383 शेयर कर लूँगा मैं आप लोगों के साथ. इसमें इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग था इन दिस सेंस कि सेक्शन 30 के वर्ड्स को कोर्ट ने उस पर एम्फेसाइज दिया. A firm was refused to be registered because firm की registration के लिए, in fact, they went for the registration of the firm in which one of the partner was a minor. So they had written that partner 1 A, B, C, D, E and F, who is a minor partner, and please register us. So they were denied to be registered, because they were refused to be registered because minor were named as partners and not partner for the benefit of the firm. Just उनको as a minor आपने declare कर देना, that is not sufficient. You have to mention that these are the minor who are there for the benefit of the firm.
उसकी मे बी लीगल रिप्रिकॉशंस जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। उसके लिए दे हैव टू मेंशन इट दैट दीज पार्टनर्स हैव बीन एडेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। तो इसकी वजह से अपील की गई थी वो जो भी रेलिवेंट सिचुएशन था, एंड बेनिफिट ऑफ द फर्म एंड नो बेनिफिट ऑफ द फर्म, नॉट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। वो अब ये सब सेक्शन कहता था कि इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म, और आई थिंक दे हैड डिस्टिंग्विश्ड बेनिफिट ऑफ द फर्म और प्रॉफिट ऑफ द फर्म में डिफरेंस है। प्रॉफिट मीन्स समथिंग पॉजिटिव, समथिंग एडिशन इज बीइंग मेड, समथिंग इज गेटिंग इनटू द फर्म। So the section does not talk about the profit. जरूरी नहीं है कि उसकी एडिशन से प्रॉफिट हो रहा हो। अगर लॉसेस अवॉइड हो रहे हो, ये कोई एडिशन नहीं है, बट दैट इज समहाउ बेनिफिट है। अगर फर्म को एट पर्टिकुलर टाइम इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है, अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं आती है तो फर्म में गेट सम लॉसेस, तो फर्म का बेनिफिट ये है, इस वक्त प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, फर्म का बेनिफिट ये है दैट समवन कुड बी इंक्लूडेड हु हैड लिमिटेड लायबिलिटी फाइन, उसके एसेट को ऐड कर दिया जाए टू अवॉइड एनी लॉसेस, दैट विल बी फाइन, दैट विल कम विद इन द परव्यू ऑफ द टर्म बेनिफिट ऑफ द फर्म। इसलिए ज़रूरी नहीं है दैट यू हैव टू ऐड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। प्रॉफिट ऑफ द फर्म शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ द फर्म। Profit means something is coming into the firm, some additions is being accrued to the firm, while benefit में ज़रूरी नहीं है कि some addition is being accrued, instead some losses could be avoided। तो ये आपने differentiate भी करना है, और at least इस केस में जब ये हुआ है तो that could be relevant। So as I was telling you, profit include advantage only, and benefit is a broader term that does not exclude losses to minor, यानी उसमें losses का element हो सकता है। If the minor may bear the losses for the benefit for the firm, fine, उसको आपने ऐड किया और उससे फर्म के लॉसेस अवॉइड किए जा रहे हैं, तो that will be fine। So that's all about the minor partner। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि हम ब्रेक ले लें 10 मिनट्स की, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। See you after 10 minutes, after 12 minutes, 12:40 पे हम क्लास को रिकंटिन्यू करते हैं।